What is बीज संस्कार? When you are attracting any soul to get into your womb, तो सबसे पहले अपनी बॉडी को क्लीन करना है. Detoxification of your mental, physical and nutritional health 6 months before preconception by the couple, because parenting means father एंड द मदर. हमारे यहाँ ना आज भी ये प्रैक्टिस में होता है कि फीमेल के चेकअप करा लो या फीमेल की फर्टिलिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है. मेल तो बाद में बोलेगा नहीं मैम, हस्बैंड का सब ठीक है. मेल का रोल कंसेप्शन तक नहीं है. वी नेवर टॉक अबाउट द सीड्स क्वालिटी. व्हाट आर द टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड इन बीज संस्कार? जितना सर्कुलेशन आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अच्छा रहेगा उतना आपका कंसीव करने का चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे. वुमेन हेल्थ इज ऑन द प्रायोरिटी. आपकी हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है. एक फीमेल की हेल्थ पोस्ट डिलीवरी के बाद पैसा आपको कहीं से भी मिलेगा, बट हेल्थ आपको सिर्फ आपकी अपनी मिलेगी. Hello and namaste. Once again, I'm Sonia Pava from 9 and Beyond, your holistic pregnancy app based on the ancient science of Garbh Sanskar, but combined with the modern knowledge of modern sciences, bringing the two together for the proper amalgamation ताकि आप इससे कनेक्ट हो सके, इस चीज को समझ सके. And like promised, once again, we have a very special guest today here who is actually come all the way from Ghaziabad, literally, emotionally, holistically, and spiritually. She's entered this space with one mission because she wants the world to benefit. उन्होंने गर्भ संस्कार के पाथ को फॉलो करा, and that is the reason she got emotionally connected with the subject and is sitting here आप जैसों को हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए, विजडम शेयर करने के लिए. So, with lot of gratitude, I welcome Dr. Neha Gaur here. नेहा जी, आपका बहुत 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 स्वागत है आज के पॉडकास्ट में. एंड मैं ऑलरेडी बहुत इमोशनल हो रही हूँ आपसे हल्के. My pleasure, my pleasure. Thank you. Dr. Gaur, is a qualified physiotherapist who started her journey in physiotherapy and headed the department of physiotherapy in the Yashoda Hospital in Ghaziabad. But her own personal life took little turns which were not so pleasant, but all these setbacks did not bog her down. Using the power of her mind, her emotions, her heart, her spiritual connect, she rose above all that, trained herself, empowered herself. Actually, she lost her twins in pregnancy, but instead of getting bogged down, उन्होंने इस एक्सपीरियंस को अपने आप को डूबने नहीं दिया. इसमें अपनी इनर स्ट्रेंथ को टैप करा. वेंट टू हैदराबाद, trained her mind, body, and soul, and changed her life by adopting Garg Sanskar, starting practicing it. And today she has a beautiful 9-year-old son, healthy, not only just physically, but let's say holistically and spiritually, all thanks to the practices that she applied. Realizing the miracle which has happened with her after the setback, she embarked on this journey to empower every woman around so that उनकी प्रेगनेंसी जर्नी, उनकी प्रेगनेंसी केयर बहुत ब्यूटीफुल हो सके, गर्भ संस्कार से शोभित हो सके, ताकि उन सब के घर में जो आने वाले बच्चे हैं वो इनके प्यारे हेल्दी बेटे के जैसे हों. That is such a noble mission, नेहा जी, जो आपने शुरू करा है. And I have no words to like say कि like what a great noble thing you are doing, honestly. It just yeah, universe. Absolutely. Probably your calling. Yeah, it's a universe calling, right? I always say that. And she has her own organization today called Heal to Fit. So aptly named. When you heal your mind, you get more fitter so that she can inspire you, motivate you,
and actually show you the light at the end of the tunnel when sometimes darkness can come in. Thank you so much, Neha ji, for being here. So आज आप प्लीज अपने ही वर्ड्स में हमारे ऑडियंस को बताओ आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में that initiated you into Gulf Sanskar and pregnancy coaching. So story, like if you talk about my like how I started, I belong to a बनिया business class family. Okay. जहाँ हमेशा एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिला, पूरा मिला. उसके बाद बट एक वो मॉरल्स शुरू से मिले पेरेंट्स की तरफ से कि मेहनत करनी है एंड ह्यूमैनिटी पे काम करना है. ऑल्दो यू हैव एवरीथिंग अराउंड विद अ गुड एनवायरनमेंट, गुड चाइल्डहुड, एवरीथिंग, बट और एक एजुकेशन को हम अपनी हमेशा एक सही डायरेक्शन में यू हैव टू वर्क ऑन दैट एंड यू हैव टू वर्क फॉर द सोसाइटी मोर. सो वहाँ से जर्नी शुरू हुई. आई बीन टू बैंगलोर फॉर माई मास्टर्स एंड मैंने मेडिकल में सुभारती मेडिकल कॉलेज से मेरठ से मैंने अपनी बैचलर्स करी. Then where I should say, I got 2 degrees, one of my physiotherapy degree and one I met my soulmate also there only. Oh, nice. And then वहाँ से मेरी journey हुई. Then I've been to Bangalore for my masters and then I started doing. वहाँ से मेरे को एक वुमेन हेल्थ के ऊपर था कुछ ना कुछ कि वुमेन हेल्थ के ऊपर आई यूज्ड टू बी एवरी टाइम जैसे अट्रैक्शन था कि आई नीड टू वर्क ऑन द वुमेन हेल्थ. I was working with Wokhard Hospital in Bangalore that time and वहाँ पे ये प्रीनेटल क्लासेस चलती थी. Okay. तो मैं वहाँ से सबसे दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरे को एक जर्नी ने अटैक किया क्योंकि हमारे फिजियोथेरेपी में ना वी हैव अ सब्जेक्ट ऑफ गायनेक एंड ऑप्स का सब्जेक्ट रहता है हमारे यहाँ प्रॉपर. तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई. तो फिर मैं बैंगलोर से आई. उसके बाद आई गॉट मैरिड ओवर द. फिर उसके बाद शादी होने के बाद I got become a HOD in the physiotherapy department in Yashoda. फिर we planned for the baby and all कि अपनी family extend करते हैं. वहाँ से हमारी journey शुरू हुई कि then I lost, I had IUD, intrauterine death of my 2 twins, one in the 5th month, one in the 9th month, and I gave birth to the still babies. But रुकना नहीं था, कुछ तो था. मतलब वो कहते हैं ना कि आपको मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, या तो आपके जो सर्कमस्टांसेस होता है उसको विक्टिम बनाकर आप रुक जाओ या आप उठकर उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लो. एंड आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आफ्टर माय डिलीवरी, आई टोल्ड माय हस्बैंड, आई डोंट नो, सडनली I want to go to doing my fitness and this advanced this course. He said, let your heal. Like, no, I want to go after 1 month. You book my tickets, I'll go. And you won't believe it, I went there again. एक होता है एक लेवल पे आकर आप फिर से हॉस्टल लाइफ में मैं गई स्टूडेंट्स के साथ. आई बीन देयर इन स्टूडेंट्स लाइफ फॉर 1.5 months देयर. आई स्टेड देयर एंड नोबडी वाज नोइंग कि मेरी क्या हुआ, मेरे साथ क्या है. एवरीवन सीम की लाइक ओके ये एक स्टूडेंट ही है एंड ऑल. एंड वहाँ मैंने अपना वो सारा जर्नी स्टार्ट करी. फिर मैं वापस आई. आई केम बैक एंड I blessed with my son after that. Okay. I blessed with my son and weight put on हो गया आपका, इतना ज़्यादा पुट ऑन हो रहा है. फिर आप एक थोड़ा सा जब आप एक मदरहुड में आते हो, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आते हो, तो आप थोड़ा सा सेटबैक में चले जाते हो आप थोड़ा सा. Right. तो वो बिल्कुल क्लियर था कि whenever my son will come from the school तो मम्मा दिखनी चाहिए. That was my moral, strong moral in my life. मैं वहाँ पे prenatal classes थोड़ा लेती थी weekends पे. I used to take the prenatal classes. I'm just talking about 18-19 years ago. Right. And उसके बाद जब मेरा हुआ सब कुछ, and when I came home and I thought let me start my own venture of women health. Right. And first time ये heal to fit जैसे आपने बोला, and I'm really मतलब thanks to you कि first time somebody has understand why I have kept the name Heal to Fit. It makes all the sense because अगर आप गर्भ संस्कार देखते हो तो this is what it is. जब तक healing नहीं हो गया fit हो ही नहीं सकते. और Heal to Fit से पहले जो मेरा बेबी था that was नारी अस्तित्व. Okay, what does that mean? मेरा नारी अस्तित्व के नाम से मैंने अपना वुमेन हेल्थ के ऊपर एक वेंचर शुरू करा. Okay, right? got it. क्योंकि जब मैं गई तो मेरे से पूछा गया कि क्या नाम रखना चाहती हो, तो मैं शायद खुद का अस्तित्व ढूंढ रही थी. बिकॉज जब आप न्यू मॉम बनते हो और आप चाहे आप चॉइस से अपने करियर को थोड़ा सा स्टे वो करते हो, बट कहीं ना कहीं एक हर किसी का अपना अस्तित्व ढूंढती है एक फीमेल कि मेरा अस्तित्व क्या है, क्या मैं एक बाउंड रह गई.
I said, I'll put a name of Nari Astitv because I'm Okay. also searching my Astitv in that. Okay. तो वहां से नारी अस्तित्व की जर्नी हुई स्टार्ट Okay. एंड मैंने एक छोटे से कमरे से आई स्टार्ट द वुमेन्स टेकिंग स्टार्ट इन दिस प्रीनेटल योगा एंड दिस माय योगा सेंटर फ्रॉम So you teach yoga also? यस यस आई एम अ योगा एक्सपर्ट आल्सो Amazing. क्योंकि मैंने फिर बहुत सारे इसमें आगे अपने एड ऑन करा एंड ऑल दिस थिंग मैं वही जर्नी जी. फिर वहां से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई देन सडनली मतलब आई केम टू नो जब थोड़ा सा मेरा बेटा बड़ा हुआ तो आई रीब्रांड माई नेम विद द नेम ऑफ हील टू फिट एंड Right. हमने उसको यूनिसेक्स बनाया कि उसमें मेल्स ऑल्सो कम बिकॉज आफ्टर कोरोना दैट ड्यूरिंग द कोरोना टाइम मेल्स आर मोर इफेक्टेड मेंटली देन द फीमेल्स Right. तो वहाँ हमें लगा कि जरूरत है लोगों को और भी ज्यादा देन बिल्कुल. इट्स कम विद अ बीज संस्कार की जहाँ कपल्स मेल्स भी आकर अपने आप को फिजिकली फिट कर सके टू बिफोर प्री कंसेप्शन एंड ऑल Right. वहां से जर्नी स्टार्ट हुई हील टू फिट की जर्नी स्टार्ट हुई वहां मेरी लाइफ का एक टर्नओवर बहुत बड़ा आया आई लॉस्ट 30 kgs आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ फ्रॉम Amazing. 74 kgs to 47 kgs Wow. बट कहते हैं ना कि भगवान उस समय कोई भी चीज होती है तो हमें बुरा लगता है बट पता है अगर इफ यू रियली ट्रस्ट योर गॉड तो आपके गॉड की ना प्लानिंग आपसे बेटर होती है आपके लिए मुझे नहीं मालूम था कि मेरी डेस्टिनी मुझे इन सब चीजों के लिए कहाँ लेकर जा रही है Right. मैंने जो लूज करा अपना क्योंकि प्रेगनेंसी वेट भी था और वो थोड़ा सा जब आप इस जर्नी में हो रहे होते हो तो Yeah. आप हर फीमेल्स कैन रिलेट दिस कि जब आप Yeah. पोस्ट प्रेगनेंसी में ना आप चाहते हो आप करना बीइंग अ योगा एक्सपर्ट Yeah. फिजियोथेरेपिस्ट बट एक मोटिवेशन खत्म होने लगता है थोड़ा थोड़ा Right. बिकॉज ऑफ द The रिस्पॉन्सिबिलिटी setback and whatever that Yes. happens in your life. and I transfer myself from 47 to 47 74 to 47 kgs Amazing. and Times of India covered my story wow. that time and believe me मेरे पास नो कोई जिम गई मैं क्योंकि कोरोना का लॉकडाउन वगैरह का सिस्टम था Right. मेरे पास कोई ऐसा कुछ वो नहीं था आई जस्ट हैव माई मैट्स एंड फ्यू डम्बल्स एंड आई डिड इट माई सेल्फ Wow. आई डिड डाइट एंड एक्सरसाइज उसके बाद मुझे नहीं मालूम था कि माई हस्बैंड डायग्नोज विद लिवर सिरोसिस वहाँ जर्नी ने फिर एक टर्नओवर लिया जहाँ कहते हैं ना आप गिरते हो उठते हो आपके Yeah. ईसीजी की तरह लाइफ का ग्राफ होता है उसको भी एक्सेप्ट किया पता नहीं था कि वो जर्नी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे एंड अप होगी और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया था वो मेरी लाइफ में इसलिए हुआ था कि वो मुझे अपनी फैमिली को सेव करना था एंड आई बिकम अ ब्लेस्ड लिवर डोनर आई ऑलवेज से आई एम अ God bless. ब्लेस्ड लिवर डोनर Wow. What a way to look at it. Instead of looking at it as a setback, नो you're calling yourself a blessed liver donor. मतलब जिससे बड़ी ब्लेसिंग मेरी लाइफ में मैं आपको बोलूं कि आज भी का गर्भ संस्कार इंस्ट्रक्टर Yeah. अगर दो चीज मेरी लाइफ में ब्लेसिंग हुई है अगर मैं रिलेट करूं मेरी ट्विन प्रेगनेंसी में शायद देखो आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी ब्यूटीफुल बेबी ऑफ Yeah. 9 year old उसके बाद जो जर्नी हुई वहां से मुझे भगवान ने शायद एक गर्भ संस्कार एक्सपर्ट बनाने के लिए वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट करी थी कि मैं लोगों से इमोशनली कनेक्ट हूँ आई कैन फील देयर पेन आई कैन फील देम आई कैन प्रोटेक्ट देम आई कैन Yeah. कोच देम वहां से जहां से बात आती है मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की एंड आई फील लाइक कि एक लिवर डोनर बनना मुझे लगता है मेरा जीवन सफल हो चुका है इससे ब्यूटीफुल कोई बात नहीं हो सकती कि यू आर चूजन बाय द गॉड टू कल्टिवेट द संस्कार for the new society, new generation. Secondly, you give a smile to somebody's. Amazing. I hope all you girls sitting out there, couples, partners, can you see how she turned? Anybody would call a setback के तो बहुत अजीब नाम हो सकते हैं, but she's calling it a blessing. The moment she changed the narrative in her head, actually it turned like a blessing in her life. And this is what Garv Sanskar is on about, right? Yes. Neha? Yes. Beautiful. And for that also I should say कि खाली गर्भ संस्कार नहीं अगर हम बात करें एक वुमन की नारी की अपनी खुद की सेहत की Right. तो आई वुड ऑलवेज से कि द फीमेल डोंट हैव जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड सबसे पहले इट्स अ संस्कार द कल्टिवेशन बिकॉज जो माँ बिल्कुल। कर सकती है आदि शक्ति नवरात्रि का टाइम है जी. जो शक्ति कर सकती है वो सिर्फ एक फीमेल कर सकती है दूसरा आपकी हेल्थ
इतने इम्पोर्टेंट है एक फीमेल की हेल्थ पोस्ट डिलीवरी के बाद भी, या किसी चीज़ Right. के बाद भी, जो मेरे साथ हुआ कि मैं अगर अपना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करती Yeah. तो शायद मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था एक डोनर का, कोई भी अरेंज करने का डोनर में. बिल्कुल. एंड आज आई सेव माई फैमिली बिकॉज ऑफ माई हेल्थ. इट इज नॉट ऑल अबाउट फाइनेंशियल थिंग. आई वुड ऑलवेज से पैसा आपको कहीं से भी मिलेगा, बट हेल्थ आपको सिर्फ आपकी अपनी मिलेगी. और आपकी हेल्थ जो दूसरों को जिंदगी दे दे, तो उससे बड़ी बात तो ब्लेसिंग है ही नहीं. तो इसलिए वुमेन हेल्थ इज ऑन द प्रायोरिटी. एब्सोल्युटली. कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की, राइट? सबकी हेल्प बहुत ज़रूरत है, पर हाँ, एक माँ की, एक वाइफ की, एक मदर की, राइट? यस, यू आर राइट. कि जब तक लाइक बोलते हैं ना, वो पहले ऑक्सीजन मास्क खुद पहनिए, फिर दूसरे को दीजिए. सब कुछ करिए, बट अपना ध्यान जरूर रखना है, इग्नोर नहीं करना. Absolutely. That's a very big lesson, Lord. Okay. I mean, this is called self-love. This is called, And this is not selfishness. This is not Self-love is not selfishness. selfishness. Self-love gives you the actually energy to spread this love Yes, yes. and share your और कहते ना, जब हम शक्ति सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के बाद, right. अगर किसी को भगवान ने वरदान दिया है तो एक औरत को ध्यान दिया है जिसको को क्रिएटर बनाया है सृष्टि की रचना करने के लिए. Good. तो अगर सृष्टि ही वीक होगी और बंजर होगी, या फिर जिसे कहते हैं हरी भरी और एनर्जेटिक नहीं होगी, तो वो रचना कैसे करेगी? अगर ब्यूटीफुल वर्ड बनाना है तो उसके पीछे की एनर्जी को तो ब्यूटीफुल बनना होगा ना. नेहा जी, आप इतनी कमाल की बातें कर रहे हो कि गॉड मेड वुमन अ को क्रिएटर. यस, और अगर को क्रिएटर की ही फाउंडेशन कमजोर है तो वो क्या क्रिएट करेगी? यस. Oh my God, this is like such a big lesson to learn today, like, you know. So, tell me one thing, that, like you were talking about Garb Sanskar, and you mentioned Beach Sanskar, right? What is Beach Sanskar and what is its significance? बीज संस्कार को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. Right. हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला होता है, राइट? जैसे अगर हमें पता होता है प्लान मेहमान है कि कोई हमारा रिलेटिव आने वाला होता है, Right. हम क्या करते हैं? सबसे पहले घर की सफाइयाँ करनी शुरू करते हैं कि अरे कोई आने वाला है, पूरा क्लीन रखो. दिवाली ही जैसे आ रही है तो हमें लक्ष्मी माँ का हमें आह्वान करना है, तो हम सबसे पहले कि शी विल बी स्पेशल गेस्ट, Yeah. है ना? तो उनके बिना तो हम क्या करते हैं? तो बीज संस्कार वही है. व्हेन यू आर अट्रैक्टिंग एनी सोल Okay. टू गेट इनटू योर वूम, आपकी लाइफ में कोई एक गर्भ में आप धारण करना चाहते हो, कोई भी सोल को धारण, तो सबसे पहले अपनी बॉडी को क्लीन करना है. Okay. दैट इज बीज संस्कार. मतलब डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर मेंटल, फिजिकल एंड न्यूट्रिशन हेल्थ 6 months before preconception by the couple, because parenting means father and the mother, and parenting starts from the womb itself. Absolutely. There is no doubt about it. Actually, it starts in the mind when you start planning the child. Yes. Literally. हम लोग बुनियाद जैसे बात करी, जैसे आपने सिग्निफिकेंस पूछा मुझसे, अब सिग्निफिकेंस को बताने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल फिर दूंगी. एक सैपलिंग को लगाने के लिए व्हाट आर द 3 things we needed? We need a seed, we need a water, we need a good soil and fertility and sunlight. These are the things which we need. अब एक माली ने 2 पेड़ लगाए, सेम अमरूद के पेड़ लगाए, और दोनों को सेम सॉइल दी, सेम पानी दिया, सेम सनलाइट दी, केयर करा, बट दोनों के जो फ्रूट निकले, एक गुआवा बहुत ही बढ़िया लाल वाला बढ़िया वाला जो हम लोग बोलते हैं, और एक गुआवा मीडियम साइज. Right. आप सबसे पहले आप क्या बोलोगे उसको? क्या बोलोगे सबसे पहले? आपके दिमाग में क्या थॉट आएगा? बीज, Right. डिफरेंस, इसकी क्वालिटी में कुछ इसकी फर्क क्वालिटी होगा. में फर्क है. आया ना वो वर्ड? Exactly. राइट. दैट इज द रोल ऑफ बीज संस्कार. And this beach is coming from the male part. मेल पार्ट. हम That is the importance. इम्पोर्टेंट. आई ऑलवेज से खाली मेल का रोल कंसेप्शन तक नहीं है, कि पर हमारे यहाँ ना आज भी ये प्रैक्टिस में होता है कि फीमेल के चेकअप करा लो, या फीमेल की फर्टिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. मुझे कोई जरूरत है, मेरे पास रोज में कोई ना कोई कपल आया हुआ तो बोलता है कि मैम इनको योगा क्लास ज्वाइन करानी है, इनको कराना है, इनको मतलब वो है. Yeah. एंड द फीमेल्स यूज्ड टू कॉल अस फॉर द काउंसलिंग एंड ऑल.
आई ऑलवेज आस्क आपके हस्बैंड, तो सबसे पहले मेल तो बाद में बोलेगा, फीमेल के नहीं नहीं मैम हस्बैंड का सब ठीक है। Yeah. प्रॉब्लम मेरा ही है, प्रॉब्लम आपका भी नहीं है। आपके 6 महीने, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कपल्स टू हैव अ गुड लाइफस्टाइल, गुड न्यूट्रिशन, गुड बिल्डअप ऑफ द लाइफस्टाइल, सो दैट आपका चाहे एग क्वालिटी हो चाहे आपका स्पर्म क्वालिटी हो, क्योंकि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा योर बेबी हेल्थ ऑल्सो, पर्सनैलिटी ऑल्सो। जैसा बीज बोएंगे वही तो फल मिलेगा हमने को। बिल्कुल अब वो खाली सॉइल का काम थोड़ी ना है, बिल्कुल। वहां से होता है बीज संस्कार। आगे जो रोल आता है एज अ कपल, एज अ पेरेंट इन गर्भ संस्कार, दैट इज अ डिफरेंट रोल। Different role. You know, Rehan, I would like to remind the audience today. See, this is the beautiful connection of our Vedic sciences followed with modern science. Yes. We had a fertility specialist ka podcast. हाँ, She said exactly the same thing. The quality of the sperm matters. hello. और उसी के लिए the partner has to detox, has to have good nutrition, has to give up certain habits which are not good lifestyle habits, Yes. ताकि उनकी बीज की quality gets better before you even think about, you know, becoming a parent. Yes. सेम थिंग आचार्य जी ने बोला आगे, सेम चीज हमारे गायनाकोलॉजिस्ट ने बोला, राइट? और आज आप फिजियोथेरेपिस्ट सेम चीज बोल रहे हो जो गर्भ संस्कार को फॉलो कर रहा है. लुक एट द स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ऑफ आवर वैदिक साइंसेस एंड मॉडर्न साइंस. Modern इट इज एब्सोल्युटली And it is a हैंड इन हैंड. and it is a proven science, जो बिल्कुल. अवेयरनेस नहीं है। मतलब बिल्कुल. सिर्फ फीमेल की हेल्थ को लेकर एग के ऊपर बात करते हैं हम, Right. AMH लेवल पे बात करते हैं कि AMH लेवल हमारा Yeah. ऐसा है या एग क्वालिटी ऐसी है। वी नेवर टॉक अबाउट द सीड्स क्वालिटी। एब्सोल्युटली. जबकि दिस इज द बिगेस्ट थिंग अभी मेरे पास, अभी नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक ही एक कपल आया, वो अपनी वाइफ को एनरोल कराने आया। तो मैंने बोला आपने क्यों नहीं करा? कहती नहीं नहीं मैम मेरे को नहीं है, उसको नहीं है। मैंने कहा नहीं, आपका बेली दिख रहा है मुझे, पेल्विक सर्कुलेशन नहीं है। तो वो कहता है अच्छा। उसके बाद मतलब वो एक ऐसा एग्जाम्पल मेरे सामने आया, आपको मैं क्या बताऊं, जब मैंने स्पोक टू देम इन डिटेल अबाउट इट, देन आई केम टू नो व्हाई दे आर नॉट कंसीविंग। एंड जिसमें वो एक IVF साइकिल करा कर आए, वो फेल थी। दिसंबर में एक IVF साइकिल प्लान्ड है, तो 2 महीने में बस वेट लॉस करना है। तो वेट लॉस इज नॉट अ टारगेट। जो बेसिक लाइफस्टाइल पे, उस पे किसी ने काउंसलिंग ही नहीं करी, तो IVF भी कैसे सक्सेसफुल होगा? तो ये बीज संस्कार जो है, इट इज नॉट ओनली हेल्पिंग यू टू कंसीव नेचुरली, it enhances the chances of your IVF and IUI also successful. If somebody have severe medical problem, that has to go for That that is some okay. specialized procedure Yeah. for that. तो ये आपको वहां पे भी enhance करता है. That counseling, that awareness must be there in the society to understand. First of all, I told that husband, you have to be with her. That's why you have to join both of you together. Right? Why she should be feeling like she has something wrong with her body and she was into the guilt and everything? No. And that has to be there. मैं आगे जैसे we will be talking, I will be telling what are the exercises which help in the beat sanskar and help you Right. conceive naturally, that Right. I will discuss it further. So, you know, like that is why, again, वही बात है, बार बार रिपीट होती है ये चीज. आजकल के मॉडर्न बच्चे, they love to say we are pregnant. It doesn't end there. It doesn't end with a photographic session of we are pregnant. Yes. We means you both are planning, you both are pregnant, you both have to work on it. And that is what is going to give quality, right? Quality, yeah. Parenting starts from the womb. Very important for partners, couples to realize this, that we actually, they have to live this we Yes. to get successful in Garbh Sanskar Yes. and in healthy pregnancy and in future of the child. Yes. Right? Definitely. Lovely. So tell me one thing. So आपने जैसे बीज संस्कार के बारे में बताया, what are the techniques which are used in बीज संस्कार? Yeah. बीज संस्कार में सबसे पहला स्टेप हमारा आता है टू काउंसिल द कपल. Okay. इफ somebody comes, उसमें हम सबसे पहले काउंसलिंग करते हैं आपकी फिजिकल हेल्थ, Mhm. देन सेकंड स्टेप इज योर न्यूट्रिशन हेल्थ, योर डाइट एंड ऑल, Right. एंड देन योर मेंटल हेल्थ. तो पहले हम बात करते हैं फिजिकल हेल्थ के बारे में. अगर तो आपका जो आपकी हाइट और आपका वो जो BMR के हिसाब से, BMI के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए. सबसे पहले तो द कपल शुड मेंटेन दैट वेट.
क्योंकि कई बार कोई बहुत ओबीज भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती, ठीक है ओबीज हो आप, बट यू शुड वर्क ऑन दैट। राइट। क्योंकि और दूसरा फिजिकल हेल्थ में वी आर मोर फोकस ऑन योर द सर्कुलेशन ऑफ द पेल्विक एरिया, ओके। मोर ऑफ द, जैसे आप ये समझिए कि कोई मशीन अगर जंग खाई हुई है, नहीं चल रही है, तो वो बहुत अच्छी तरह एकदम से आपको काम नहीं करेगी। बिल्कुल। जितना सर्कुलेशन आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अच्छा रहेगा, उतना आपका कंसीव करने का चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। बिकॉज राइट। जब बॉडी का एक तो वेट कंट्रोल रहेगा, वेट के हिसाब से आपकी बॉडी बिल्कुल फिट होगी, टोन्ड होगी। राइट। दूसरा आपका सर्कुलेशन, पेल्विक सर्कुलेशन हस्बैंड वाइफ दोनों का अच्छा रहेगा, तो उसमें आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो अच्छा रहेगा। तो यहाँ एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, फिजिकल हेल्थ डजंट ओनली गिव यू द फिजिकल फिटनेस, इट्स गिव यू द डिटर्मिनेशन, it give you the strong lifestyle also, it creates the happy hormones also. And I always say to my patients too, when they join ki when you both couple comes now over here, so it become a mission for both of you together. It's Right. a life, it's a happy time for both of you. We are doing for your baby from starting. Right. We're doing both of you joining the Beat Sanskar program, doing the meditations, doing the exercises together. तो वो एक मी टाइम मिलता है आपको, और आपकी बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग करता है। आपकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर बात आती है डाइट, लाइफस्टाइल और आप कहोगे न्यूट्रिशन की। राइट। तो वी ऑलवेज सेज कि बिफोर, जैसे अभी आपने बोला कि 6 मंथ पहले वी शुड आस्क द कपल टू क्विट विद द अल्कोहल, स्मोकिंग और एनी अदर अब्यूजिव ड्रग्स इफ दे आर टेकिंग, एंड ट्राई टू हैव द सात्विक लाइफस्टाइल, जो बहुत मुश्किल आजकल हो गया है। when I asked the people, they said we started now, ma'am, जब से हमने प्लान करना शुरू करा है, तो we have started sleeping early, and early sleeping का टाइम होता है 12-1 बजे, right? पता है मैं आपको बताऊं, what I realize with my experience, we all are going against nature. ठीक है, इट इज नॉट ऑल अबाउट जो हमारे वैदिक साइंस में था या आयुर्वेद में था, वही है लाइफ, और वही चीजें वापस आ रही हैं। बिकॉज जिस तरह से आप इनफर्टिलिटी बढ़ता जा रहा है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास गर्भ संस्कार से ज्यादा इनफर्टिलिटी की क्वेरीज ज्यादा होती हैं। एंड सबसे बड़ा टास्क जो ये हमारे यहाँ जो लाइफस्टाइल स्ट्रेस है, हस्बैंड की नाइट शिफ्ट है, फीमेल की मॉर्निंग शिफ्ट है, वर्क फ्रॉम होम है, दैट इज अ मेन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी एंड द प्रॉब्लम इन नॉट गेटिंग कंसीव। बिकॉज वो कहते हैं ना, कंसीव करने के लिए भी दे हैव टू प्लान। और पहले के टाइम में अगर आप एंशिएंट टाइम की बात करें, देयर वाज अ, हमारे गर्भ संस्कार में कहते हैं कि टाइम ऑल्सो अ वन मेजर फैक्टर विच इफेक्ट द बेबी पर्सनालिटी। तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि पहले टाइम में, अगर आपको याद हो, तो पहले राजा महाराजाओं के ना, उनके ना गुरु वगैरह वो नक्षत्र और वो निकालते थे कि दिस टाइम द क्वीन एंड द किंग विल बी प्लानिंग द बेबी एंड दे हैव टू क्रिएट द एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग। अभी तो वो सब सिस्टम ही खराब है ना। अभी तो वी हैव टू फोर्स द कपल टू, एंड वी हैव टू टेल कि आप अपना प्लीज ओवुलेशन टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, एटलीस्ट यू ट्राई दैट दोस टाइम। तो दे विल से मैम टाइम ही नहीं मिलता, दैट इज अ मेन रीजन। तो वहां से बात आई लाइफस्टाइल की, तो सात्विक लाइफस्टाइल पे लेना है, खुद को टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, और मतलब अपने आप को स्ट्रेस फ्री लाइफ से रखना, ठीक है, गुड कंटेंट पे आना। उसके बाद सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका डाइट और आपका स्लीपिंग पैटर्न फॉलो करता है। आप माइंड शांत होगा, जिसका माइंड और आत्मा शांत होगी, रिजुनेट होगी प्रॉपर एक टाइमिंग से। भगवान ने अगर रात बनाई है तो वो सोने के लिए बनाई है, और बायोलॉजिकल क्लॉक भी वैसे ही काम करती है। कहते हैं ना हमारे आयुर्वेदिक में कि सुबह आपकी अग्नि का वो बढ़ता है तो आपको खाना, फिर दोपहर में रात का खाना, जैसे सूर्यास्त के टाइम पे आप लाइट में, अब आप उसको आज के टाइम में, मॉडर्न साइंस के टाइम में इंटरमीडिएट फास्टिंग कह ले, बट ये तो हमारी धरोहर थी पहले से ही। बिल्कुल। और आज भी कुछ रिलीजन्स में, अगर मैं जैनिज्म में बात करूं, आज भी दे आर फॉलोइंग द सेम थिंग। एवरीथिंग इज साइंटिफिकली कनेक्टेड। कोई भी चीज ऐसे नहीं है हमारे यहाँ जिसको हम भूलते जा रहे हैं, बट अब उसको मॉडर्न साइंस के जरिए में पीपल आर एडेप्टिंग इट। तो वो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट, उससे स्ट्रेस लेवल कम हुआ। फिर बात आई डाइट की, क्लीन डाइट पे आइए।
प्रोटीन रिच डाइट पे आइए, फॉलिक एसिड जैसे है उस प्रोफाइल पे आइए. द कपल शुड गो फॉर देयर मेडिकल टेस्टिंग स्क्रीनिंग before 6 months when they are planning for the baby. They should meet some gynec or some expert. अपनी स्क्रीनिंग पूरी कराइए कि मुझे कोई अंडरलाइन डिजीज या कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे थायराइड है जो हमें पता ही नहीं है, एंड वी विल बी प्लानिंग द बेबी. और फिर वो जो नहीं हो रहा तो लगता है अच्छा अब ये हो गया कॉम्प्लिकेशन. तो बिफोर यू प्लानिंग द बेबी यू शुड गो फॉर सम स्क्रीनिंग, मीट योर गायनेक, एंड देन उसके बाद अगर कुछ अंडरलाइन चीज़ें हैं जैसे वेट इश्यूज है या कुछ है तो यू शुड वर्क ऑन दैट. एब्सोल्युटली. ठीक है. तो वहाँ डाइट आएगी आपका, आप प्रॉपर टाइम पे अपना सात्विक फूड खाइए. आप अपना जैसे थोड़ा सा कहते थे ना हमारे टाइम में, पहले के टाइम में हमारे में कहते जैसा खाना खाते हैं वैसा we eat. है ना, what we are Yes. eat, and Yes. I strongly believe into that because Absolutely. I charge my food and my water when I eat. And हम अपने गर्भ संस्कार में भी अपनी सारी मॉम्स को यही सिखाते हैं कि वॉट एवर यू आर डूइंग ग्रहण करो, एंड बच्चे को लगेगा ही लगेगा. एंड वी हैव सीन द ट्रेमेंडस एग्जाम्पल इनटू दैट कि जब मदर्स जो प्रेगनेंसी के दौरान जिस तरीके से खाती है और बच्चों को नैरेट करके आते हैं दिस इज सो यमी एंड दिस इज सो न्यूट्रिशन, बच्चे कभी फिनिकी ईटर नहीं होते. मेरा बेटा, मेरे पास अपना पर्सनल एग्जाम्पल भी है, वो कभी फिनिकी ईटर बना ही नहीं. He's happily eating everything. अगर बीमार होगा तो बच्चा गर्म पानी भी पिएगा, हल्दी वाला दूध भी पीता है, वो सब कुछ करता है वो. और वो जंग भी, ऐसा नहीं है बच्चे तो जंग भी वीकेंड्स पे उसको जंग भी मिलता है. तो बट ये बहुत एक डीप साइंस है जो आप मानते हो तो कहते हैं ना भगवान है, नहीं तो मूर्ति है. हाँ, बस सही बात. बट ये साइंटिफिक. उसके बाद बात आती है मेंटल हेल्थ की. अगर अपने टेक्निक की बात करें जी, हम कहते हैं गर्भ संस्कार में सोल का आवाहन करना, आत्मा का आवाहन करना. हम सब ये जानते हैं और हम सब ये प्रैक्टिस करते हैं कि सोल ना तो मरती है जी, और ना उसको कोई डिस्ट्रॉय करता है. इट इज़ अ रिकार्नेशन एंड रीबर्थिंग का प्रोसेस रहता है. right. इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास पार्वती जी और सती जी हैं. जिस तरीके से सती हुई और उनका रिकार्नेशन से शैलपुत्री जो पहली हमारी वो है, शी इज अ रिकार्नेशन ऑफ सती right. इनटू द फॉर्म ऑफ पार्वती. right. ठीक है. वो एक बहुत बड़ा हमारी टीचिंग है कि इसका मतलब रीबर्थ और रिकार्नेशन होते हैं लाइफ में. एक सोल दूसरी उस बॉडी में जाती है. Most of the religions believe in that. It's Right. not just, yeah. या तो यही चीज है जो हम बीज संस्कार में कवर करते हैं. आपके जो कार्मिक अकाउंट होते हैं, जो आपका कार्मिक कहेगा जी, आज हम कहते हैं ना कि हम सब एक फैमिली का हिस्सा कैसे बने, वो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी बर्थ में वी हैव सम कनेक्शन विद दैट. एंड हमारे जो कॉमन कार्माज होते हैं वी अट्रैक्ट, द सोल अट्रैक्ट. जिस तरह से आप विजुलाइज करते हो किसी चीज को, जिसको मैनिफेस्ट करते हो वैसे ही होता है वो. okay. तो और इसीलिए हम बोलते हैं कि सोल का आह्वान करना. उसको आह्वान कैसे करना है? यू सिट एंड मेडिटेट एंड स्टार्ट राइटिंग द फर्टिलिटी मेडिटेशंस एंड फर्टिलिटी अफर्मेशंस लाइक आई एम अ फर्टाइल बॉडी, आई हैव अ फर्टाइल बॉडी, आई एम अट्रैक्टिंग अ डिवाइन सोल, आई एम अट्रैक्टिंग my happy child inside my womb. Me and my husband have a harmony in our relationship. My eggs are fertile, my eggs are healthy, everything. तो आप जिस तरह से करोगे आपकी मैनिफेस्ट वैसे ही सोल का आह्वान होना शुरू होगा. हम कहते हैं सोल अट्रैक्ट करती है. आप जिस तरीके से जो पर्सनालिटी की इमेजिनेशन करते हो वो सोल अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है. And it's a proven science. It is a proven science. ठीक है. मेडिकल साइंस भी इस चीज को एक्सेप्ट. मेडिकल साइंस भी. तो वहां से पहला होता है सोल आवाहन. ठीक है, मेडिटेशन. दूसरी मेडिटेशन आती है इसमें पंचभूता मेडिटेशन. दैट इज क्लीनिंग योर बॉडी विद द 5 एलिमेंट्स. हम सबको ये पता है कि हमारी जो ये बॉडी है इट्स मेड ऑफ अ 5 एलिमेंट, अग्नि, वायु, जल, धरती, आकाश एंड स्पेस. ठीक है. तो इन 5 एलिमेंट्स को हम आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हर एक हमारा जो ये एलिमेंट है वो हमारी एक बॉडी का पार्ट है. ठीक है. जैसे जल, हम अग्नि हमारे यहाँ पे स्तोत्र है, हमारी नाभि पे स्तोत्र है अग्नि का. और अग्नि की ताप हमारी बॉडी को क्लीन करती है, प्योरिटी.
वायु उस इम्प्योरिटीज को अपने साथ लेता है और वायु हमारी टेक्टाइल सेंसेशन बनाता है हमारी बॉडी के और हमारी आइज की सॉकेट्स को बनाता है। ओके, देन जल हमारे जितने भी हमारे गीले पदार्थ है, प्लाज्मा, हमारी सलाइवा, हमारा जैसे जितना भी Yeah. गीला पदार्थ वो हमारी बॉडी का बनाता है। फिर बात आती है मदर अर्थ, अर्थ की, वो हमारे नेल्स, हेयर्स, हार्ड सर्फेसिस की बात बिल्कुल। करें। फिर बात आती है आकाश और स्पेस की, वो हमारे ये बनाता है हमारी लिम्स को, जो हमारी लिम्स की Right. बर्ड्स हैं उनको क्रिएट करता है हमारे यहाँ। तो हम उन 5 तत्वों को पहले तो प्रार्थना करते हैं, फिर हम उनको आह्वान करेंगे कि आप हमें क्लीन करके हमारी बॉडी को आह्वान करके मेरे बच्चे की इन सब चीज़ों को, तत्वों को क्लीन करके आप हर चीज़ को अच्छे से फॉर्म करिए और मेरा एग फर्टिलाइज हो जाए। राइट। तो दिस इज नोन एज पंचहुड। तो दिस इज द वे वी आस्क देम टू डू इट। मतलब एक प्रोसेस है, बिल्कुल। ये 3 चीजें। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि मुझे कोई बीमारी है तो मैं करूं, या मैं मुझे इनफर्टिलिटी है तो मैं करूं। आई थिंक दिस प्रैक्टिस शुड बी मतलब प्रैक्टिस शुड बी डन बाय एवरी कपल बिफोर प्लानिंग, बिकॉज तभी आप एक अच्छा आत्मा को जन्म दोगे और वो जो आके आपकी नेक्स्ट जनरेशन और सोसाइटी बना रही है। तो ये आपके Absolutely. पर आपका जन्म इस दुनिया में किसी ना किसी वजह से होता है। तो अगर आप एक शादी में आए हैं और आप एक माँ बाप बनने के उसमें आए हैं, तो भगवान ने आपको बोला है कि आप एक क्रिएशन बनाने जा रहे हो, तो आप कृप नहीं कर सकते कि जनरेशन खराब है। मैं हमेशा बोलती हूँ जनरेशन कभी खराब नहीं। तो जैसे ही आप बीज बनाएंगे, जैसे आप आह्वान करेंगे, वही तो क्रिएट होगी लाइफ आगे। Absolutely. So, like simple words, procreation is the biggest responsibility given to human beings by nature and universe, right? Yes. And वही बात है, अगर आपको प्रोक्रिएट करना है तो क्या आप गलत दुनिया प्रोक्रिएट करना चाहेंगे Yes. या आप खूबसूरत दुनिया प्रोक्रिएट करना ये चाहेंगे? आपकी So आपके ये ऊपर है। डिसीजन आपके ऊपर है, राइट? हाँ। एंड आपकी सो यू नो बहुत क्लियरली कनेक्शन है कि जब आप ये सारी प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स यू आर मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली नाउ रेडी to conceive a baby. Yes. And this is reminding me of another beautiful example which आचार्य जी ने दिया था पॉडकास्ट पे. He said 2 लोग हैं, सुबह घर से निकले ट्रेन पकड़ने के लिए, राइट? और बहुत रश है. एक जना बोलता है मुझे तो इस ट्रेन में घुसना है बिकॉज मुझे 9 बजे ऑफिस पहुंचना है हर हालत में. दूसरा कहता है कौन पहुंचेगा, इतनी भीड़ भाड़ में कौन जाएगा, चलता है, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा. सो यू नो जिसने ये प्रण किया था उसकी बॉडी इज नाउ गियर्ड टूवर्ड्स फाइटिंग एंड रीचिंग दैट डेस्टिनेशन, Yes. whereas the other one is not. So the moment all these things are prepared, you know, आपने physically prepare कर दिया, mentally prepare कर दिया, spiritually prepare कर दिया, nutrition में prepare कर दिया, your body is so ready to accept the new soul that I think pregnancy होएगी, because आपकी body एकदम तैयार हो गई है इस चीज़ को accept करने के लिए, right? Yes. So difficulty is definitely, you know, like एकदम से clarity नजर आ रही है कि yes, you know how difficult how होता है difficult conceive नहीं है। कर रहे हैं, conceive somewhere different levels पे रुकाव है आपके रुकाव माइंड है। में, है ना? और ये खाली आपको कंसीव करने में नहीं सिर्फ हेल्प करती, ये आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी में हेल्प करती है। Absolutely. कि जो आज के टाइम में मैं देख रही हूँ, पहले जब मैंने 18 ईयर्स पहले जब अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी, उस समय मैं देखती थी आराम से 40 वीक तक प्रेगनेंसी चलती थी एंड बड़ी कॉन्फिडेंटली हम लोग बोल पाते थे कि यस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेचुरल बर्थ। Right. ठीक है, हम आपको नेचुरल बर्थ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब जैसे जैसे मैं देख रही हूँ 37th वीक तक प्रेगनेंसी खींचना मुश्किल हो गया है हमारे लिए, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस आने लगी है। एंड नाउ लाइक कभी गेस्टेशन डायबिटीज बढ़ती जा रही है, हाइपरटेंशन बढ़ती चली जा रही है, एमनियोटिक फ्लूइड कम होता चला जा रहा है, बिकॉज लाइफस्टाइल में इतना स्ट्रेस लेवल है, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, चाहे आप, क्योंकि हम बेसिक चीजों पे काम ही नहीं कर रहे हैं ना। कंटेंट हम क्या देख रहे हैं, कंटेंट हम क्या ले रहे हैं, इट इज नॉट ऑल अबाउट। अच्छा, रामायण, घर में बड़े लोगों ने कहा रामायण पढ़ो उस टाइम पे, बट मेरा हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो व्हाई डोंट यू मेक, दैट्स व्हाट दिस गर्भ संस्कार प्रोग्राम हैज बीन एस्टैब्लिश, कि हम उस अपनी ही धरोहरों को मॉडर्न साइंस के जरिए आपको पहुंचाए। जैसे मेरे जब सेशंस होते हैं,
I used to teach Gita and Ramayan into the latest way. अभी we have Right. introduced the चाणक्य नीति also. कि आपके जो, जैसे मैं हमेशा रामायण के एग्जाम्पल्स में ये देती हूँ कि अगर हमने एक एपिसोड लिया रामायण का कि राम जी को विश्वामित्र लेके गए दुतारमा, तो उसमें हमने एग्जाम्पल दिया कि अगर आपके बच्चे को कोई अच्छा अचीव करने के लिए कोई अच्छा गुरु मिलता है तो हम उसे इमोशनली रोक देंगे या हम जाने देंगे अपने बच्चे को स्ट्रांग बनने के लिए. तो Right. दीज आर द थिंग्स विच वी रिलेट विद दैट. Right. जैसे आजकल हमारे नवरात्रि एक्टिविटीज चल रही है मेरे यहाँ 9 days, तो आई यूज टू टेल माई मॉम्स, ऑल द मॉम टू बीज, कि आप ही तो हो शक्ति, आप ही तो हो पार्वती, क्योंकि आप ही क्रिएट कर रही हो लाइफ. एंड आप ये देखिए इतना ब्यूटिफुली हमारी जो 9 days की देवी है, इट इज रिफ्लेक्टिंग द फीमेल जर्नी. एक Yes. पैदा हुई, फिर Right. टीनेज में आई, Right. ब्रह्मचारिणी बनी, बिल्कुल. फिर वो पूरी Yeah. टीनेज की Yeah. वो है. तो Absolutely. उसी तरीके से ये बीज संस्कार का भी मेरा ये रहता है कि इट इज नॉट खाली कंसेप्शन तक है, इट इज आप कैसा बनाओगे आगे. गर्भ संस्कार में एक मदर का एनवायरनमेंट, एक फादर का वो आना ही आना है. कॉम्प्लिकेशंस को रोकेगा ही रोकेगा. आपको नहीं लगता नेहा जी, अगर ये सारी चीज़ें हमारे सीनियर स्कूल कॉलेज लेवल्स में ही हम पढ़ाना शुरू कर दें, how much better world we will create by creating people with better human values, compassion, empathy, हर वो अच्छी क्वालिटी जो हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं. आपने जो ये बोला कॉलेज स्कूल, अभी बिल्कुल. मेरा एक नेक्स्ट प्लान ये था कि मैं अपने बेटे के स्कूल गई और मैंने वहाँ जाके बोला आई वॉन्ट टू टीच द चाइल्ड अबाउट मेडिटेशन एंड अबाउट दिस द प्यूबर्टी. तो उन्होंने कहा प्यूबर्टी हो, मैं कहा नहीं, मुझे प्यूबर्टी के बारे में ये नहीं बताना कि आपको आएगी प्यूबर्टी. Right. मुझे ये बताना है कि हाउ योर गर्ल्स एंड द बॉयज आर ब्लेस्ड दैट यू आर इनटू द पीरियड्स एंड आपका मेंस्ट्रुएशन हो रहा है. मैंने कहा ये मुझे बताना है. कहते मैम ये क्या बताना है इसके पीछे. मैंने कहा इसके पीछे मुझे ये बताना है सबसे पहले कि हम बॉयज़ के बिल्कुल बराबर के हैं, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमें पीरियड्स होते हैं यार, इनको क्यों नहीं होते. एंड आई विल से नो, वी हैव समथिंग स्पेशल गिफ्टेड बाय गॉड to create a life in the future, so we are blessed to have this. To feel blessed and feel proud about it. Right. It is not a curse, it's a blessing. It is. जैसे साउथ में एक there is I think one function used to do that ना, when the girl got. Yeah. So I really appreciate that thing. It is not something, it is you celebrating feminism. Yes, why you have to compare yourself. इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपने आप को नीचा देखते हो तभी तो आप कंपेयर करते हो ना. Why we are bringing our girl child, मेरी बेटी मेरे 100 लड़कों से कम नहीं है. She is a girl, Yeah. proud to be a girl. Yeah. तुम्हें वो है जो लड़कों में नहीं है, तुम्हें वो सिखाना है. Yeah. You have a power to create a life True. that male don't have. And उधर अगर हम बात करें, मैं भी एक बेटे की माँ हूँ, तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलूँ तो आई वॉन्ट टू टीच माई सन अबाउट वॉट द फीमेल गो थ्रू फ्रॉम द एडोल्सन till she give birth, till she got into the menopause, because it Yeah. menopause भी एक बहुत ही हमारे यहाँ unexplored चीजें हैं जिसके ऊपर काम नहीं करते, जो एक नारी का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें सपोर्ट चाहिए आपको. बिल्कुल. And तो I need to be tell to all the sons mother, we should teach our son also about it. It should not be hide. जैसे हम लोगों ने देखा कि जनरली हाइड कर दिया जाता है, क्योंकि जब लड़की आपके घर, आपकी वाइफ आती है आपके, उसने बोला कि my mother taught me for 3 days, we are teaching our child कि okay you should be taking care because it's good, you have a reproductive system should be good, healthy, Right. and everything you should take care of good nutrition and during this time and everything. But क्योंकि लड़कों को ये सिखाया ही नहीं जाता, उनसे हाइड करा, तो ओके मेरे को तो पता ही नहीं, मेरी मम्मा और बहन ने तो कभी नहीं रेस्ट किया, तुमको ज्यादा लगता है, तुम ज्यादा नाजुक हो, तुम ज्यादा वीक हो, थोड़ा स्ट्रांग बनो ना. Why to say that? तो that responsibility of a mother only to teach your son about the female life, how the pregnancy feel, and every body, every mind, everyone, every woman is different. So that has to be respect and that has to be taken positive. Definitely. Yes. Another big lesson which you're teaching, that it's a responsibility of a mother to prepare even her sons Yes. to take the responsibility. Yes. Right. And like, don't say
कि वो 100 लड़कों के बराबर है, वो 100 इंसानों के बराबर है. Yes. As और वो simple as that. it's a Yeah. blessing to be a woman. Absolutely. One added blessing because जो उनके पास नहीं है वो हमारे पास है. Yes. Absolutely. Perfect. So basically then आपने ये तो बता ही दिया कि how बीज संस्कार will help in IVF and IUD. That clarity is beautiful. How or what is the difference between बीज संस्कार and गर्भ संस्कार? बीज संस्कार, preconception, गर्भ संस्कार, your during the pregnancy. Post conception. Yes. So basically, right. Garb means womb, Right. and sanskar, it's a fetal training program inside the womb, or you can say a parenting inside the womb. बिल्कुल. That is a garb sanskar, and B sanskar, it is preconception or preparing the couple for parenthood. Lovely. That's a beautiful way of, very simple way of explaining what is the difference and why both are equally important and how it can create the difference in their life. Right? मेरे लिए अगर आप कोई भी couple हो, Yeah. it should be a matlab combination of both. Then you'll see the miracle in your life and the society. You बिल्कुल. start with the Beej Sanskar and completing it to the Garb Sanskar. And after then, it's nowadays, it is like become a Shishu Sanskar also till the 5 year of age. बिल्कुल. Absolutely. Because the kids are like a sponge and they absorb everything. So, Yes, because 8 Yeah. years तक बच्चों का subconscious mind develop होता है. बिल्कुल. And their subconscious mind comes from the environment of the family. 8 years के बाद बच्चों का analytic mind शुरू हो जाता है. True. And जो बीज आपने बो दिया, वो बीज जरूर आज नहीं तो बाद में आपको ये पता लगेगा कि nowadays it's a need of a lifestyle and a art to upbring our child more emotionally strong, equally like the way we keep the physically also make the physical health in the priority, Right. but emotionally strong होना कितना जरूरी है. It is like the same way आप बिल्डिंग बनाते हो, बिल्डिंग की बुनियाद पे काम नहीं करके आप ये सोचते हो मैं इंटीरियर ब्यूटीफुल कराऊंगा, मैं पेंटिंग ब्यूटीफुल कराऊंगा, और हल्का सा एक अर्थक्वेक आया और सबसे पहले वो ब्यूटीफुल बिल्डिंग चली गई. वो अर्थक्वेक क्या है? वो आपके बच्चों के फेलियर्स हैं, आपके कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं. अगर बच्चा उस पर दर्द खड़ा रहा, जो आजकल हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं बिल्कुल. कि कोई सुसाइड कर रहा है, कोई डिप्रेशन. मेरे पास इतने पेरेंट्स आते हैं अपने ये कॉलेज फर्स्ट ईयर के बच्चों को लेके कि मैम एंजाइटी अटैक है. एंड मैं उनसे पूछती हूँ कि बेटा एंजाइटी किस चीज़ की एंजाइटी है? मेरे को, मैं आई थिंक खूबसूरत नहीं हूँ मैम, मेरा थोड़ा वेट पुट ऑन हो गया है, मेरे को दोस्तों ने ऐसे नहीं देखा. बिकॉज बच्चों के पास ना हमारे टाइम से और अब में इतने चैलेंजेस आ चुके हैं जो हम रियलाइजेशन में ही नहीं है. दे हैव अ मोर चैलेंजिंग देन आवर Yes. चाइल्डहुड that we should Yes. respect and they should understand also. We should not say every time हमारे टाइम में ऐसे नहीं होता था, हमारे टाइम में ऐसी. प्रेगनेंसी में भी होता है सेम चीज. चीजें तो सब चेंज हो गई ना, तो फिर क्यों? Absolutely. So we should also start changing into our thinking and understanding and have to teach our either the young girls or either a boy, everyone in some modern way and the more beautifully and scientific way. Absolutely. So आपके हिसाब से आज के मॉडर्न डे लाइफस्टाइल में प्रैक्टिकली हाउ डू यू सजेस्ट कि गर्भ संस्कार को प्रैक्टिस किया जाए और फॉलो किया जाए? गर्भ संस्कार और बीज संस्कार, जैसे मैंने बताया अभी कि हमने बीज संस्कार में बात करी कि प्रैक्टिकली कैसे करें. Right. गर्भ संस्कार में भी वही सेम चीज आती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पेरेंट्स ने बीज संस्कार की जर्नी ले ली तो उनको गर्भ संस्कार करना बहुत आसान है, क्योंकि वो Right. ऑलरेडी ही उस जर्नी में पार्ट बन चुके हैं. बिल्कुल. और जो लोगों ने नहीं करी है ये जर्नी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड द गर्भ संस्कार, जिसको हम काउंसलिंग एक रहती है कि क्या इम्पोर्टेंस है. दूसरा, जैसे मैं एक चीज़ बोलती हूँ, हमारे गर्भ संस्कार में ना एक बहुत ही एक कॉमन एग्जाम्पल बन गया अभिमन्यु का. Right. एवरीवन टॉक अबाउट अभिमन्यु. जी. एंड आई ऑलवेज से इन माय व्यू कि अभी हम लोग आज की जो मम्मियाँ हैं, हम लोग Yeah. वी कैन नॉट बिकम लाइक अ अभिमन्यु मदर. Right. हम लोग का वो लाइफस्टाइल नहीं हो सकता जो होता था कि होता था. बिल्कुल. अब क्या करा जाए, जो ये चैलेंजेस है, तो क्यों ना हम उस मॉडर्न साइंस को हमारे एंशिएंट प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिस करके जो आज का
स्ट्रेस है, जैसे वर्किंग आवर्स हैं और टाइमिंग्स हैं, सब कुछ है, उसको उसी तरीके से डिज़ाइन करा जाए और उनको उसी वे में समझाया जाए कि जब आप सुबह उठते हो तो आप अफर्मेशन प्रैक्टिस करो। क्योंकि जहाँ बच्चे की बात आती है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस करा है, तो आप बीज संस्कार करो ना करो, समझो ना समझो, बट जहाँ बच्चे की बात आती है तो एवरीवन इज लाइक अभी सब कुछ करने का है, मतलब करना है करना है। तो वहां से स्टार्ट करो कि अपनी मॉर्निंग प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। सबसे पहले कनेक्ट विद द बेबी, वी कनेक्ट, वन मेडिटेशन इज देयर इन गर्भ संस्कार, कनेक्टिंग टू द बेबी एंड गर्भ संवाद, टॉकिंग टू द बेबी इनसाइड द वूम एंड कनेक्टिंग मेडिटेशन। तो सबसे पहले सुबह उठ के कामली कंपोजली बैठो, विजुलाइज करो हाउ द बेबी इज कनेक्टिंग विद यू, एंड उसके बाद बच्चे को आप इन्वायरमेंट क्लाइमेट का ओरिएंटेशन करो। Write the affirmations: I'm a confident soul, I'm a confident mother, I'm a healthy mother, my baby is a divine soul, my amniotic fluid is in a good quantity, I'm delivering my baby in full term, I can visualize my healthy recovery post delivery. These are the affirmation you start doing it. And उसके बाद आप चैंटिंग पे आते हो। जैसे वी हैव 3 ट्राइमेस्टर का अलग अलग Right. चैंटिंग्स हैं हमारी, ठीक है, बिल्कुल। मंत्रास हैं अलग अलग। बिल्कुल। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में महामृत्युंजय, राम Yeah. रक्षा मंत्र, एंड सेकंड ट्राइमेस्टर गायत्री मंत्र एंड ऑल दिस थिंग, एंड देन थर्ड अगेन महामृत्युंजय बिल्कुल। एंड हनुमान चालीसा। तो उनको आह्वान करना है, ये नहीं कि बस मैं चल रहा है। हाँ, जैसे मेरे पास फोन आएगा, मैम मैं मंत्र तो रोज सुनती हूँ, मैंने कहा एक सुनना, जिस दिन मैं बेबी कनेक्टिंग कराऊंगी और फिर उस दिन मुझे बताना। एंड आज तक, मतलब आई शुड फील ब्लेस कि आज तक कोई मेरा फर्स्ट सेशन ऐसा रहा ना हो जब बेबी कनेक्टिंग कराई हो तो या तो पेरेंट अगर आके दोनों साथ करते या मदर ही होती, दे डोंट हैव अ टीयर्स इन देयर आईज। क्योंकि वो जो वो कहते हैं कि हम करते हैं, मैम हम रोज बात करते हैं रात को। मैंने कहा आज आपका बात करना और मेरा बात कराना, मतलब मेरा मतलब कि जो कनेक्टिंग टेक्निक है उससे बात कराना, डिफरेंस, बिकॉज कामली बैठे हो, विजुलाइज कर रहे हो, उस समय मूवमेंट भी फील होने लगते हैं। इतना मैजिकली हमें दिखता है चेंजेस कि 6-7 मंथ तक तो हालत ये हो जाती है कि मैं जैसे ही मुंह खोलती हूँ अपने क्लास के लिए, मेरे पेशेंट बोलेंगे मैम बेबी स्टार्ट किकिंग। Oh, so sweet. बिकॉज बच्चा आपकी Yeah. पहचानने लगता है, क्योंकि माँ वही टाइम पे शांति से बैठी है। Right. तो मंत्रा भी आह्वान करना है, मैं कहती हूँ ग्रहण करना होता है। बच्चे को फील कराओ, अगर गायत्री मंत्र भी चल रहा है ओम, तो फील करो। एक क्या है, आप काम कर रहे हो, ओम भूर्भुवः चल रहा है, दैट इज नॉट। ऐसे ही जब खाना खाना है, ये तो हमारे नॉर्मल, सब लोग बड़े लोग भी बोलते थे ना, खाना खाते हुए टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो। आप Yeah. खाना जो खाते हो आपको पता होना चाहिए आप क्या ग्रहण कर रहे हो, वही सेम चीज बच्चे को ओरिएंटेशन दो। तो आई ऑलवेज से टू माई मदर्स, पूरे दिन में 3 बार आप बेबी के साथ पीसफुली बैठ के कनेक्ट। ठीक ऐसे ही रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड करोगे, पूरे दिन का एक ग्रैटिट्यूड। हम लोग एक ग्रैटिट्यूड बॉक्स बनवाते हैं, ब्लेसिंग बॉक्स बनवाते हैं, व्हेन एनी ऑफ द पेशेंट एनरोल विद मी। 9 मंथ के बाद उसको खोलेंगे, तब आपको पता लगेगा आपने कितनी ब्लेसिंग्स काउंट करी आपके पास हुई। हम जो ग्रिप करते रहते हैं ना, मेरे साथ ये हुआ, अरे मुझे तो उसने ध्यान ही नहीं रखा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मेरे साथ तो इतनी चीजें थी, देन यू विल रियलाइज कि यू हैव मोर ब्लेसिंग्स विच वी फॉरगेट टू काउंट। Right. तो वो बॉक्स बनाना, जैसे हम नॉर्मल लोगों में हम बोलते हैं आप पूरे साल का एक बॉक्स बनाओ और फिर 1 जनवरी को उस बॉक्स को खोला एंड काउंट योर ब्लेसिंग एंड ग्रैटिट्यूड टू द होल ईयर। Right. राइट, तो वो एक प्रैक्टिस है आपकी। उसके बाद वी हैव सम असाइनमेंट्स, पॉजिटिव असाइनमेंट ड्यूरिंग द गर्भ संस्कार, लाइक डिजाइनिंग अ सुपर मॉम, डिजाइनिंग अ सुपर बेबी, और कुछ विजुअलाइजेशंस आती हैं, चक्रा मेडिटेशंस की, आप कलर्स कॉम्बिनेशन देते हैं, आपको एक स्टोरी फॉर्म करनी है, आपको उसमें भी डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ क्या डिफरेंस होता है। जब आप आजकल टेक्नोलॉजी में क्या होता है, कई लोग जैसे होता है ना डिजिटल पैड्स वगैरह से डिजाइन करके, आई ऑलवेज सेड नो, गेट द कलर्स, पेंसिल, स्केचेस। फिर मुझे बोलते हैं हम अरसे बाद छुए कलर्स, बहुत टाइम पहले स्कूल में करते थे, और जब करने बैठे तो क्रिएटिविटी में आता है। मैंने कहा क्या फर्क लगा, इट इज अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन गोइंग टू द टेम्पल एंड डूइंग द सेम पूजा एट योर रूम, बेडरूम। तो मैंने कहा जब आप कलर लिखना शुरू करते हो ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप होता है। तो खाली वो डिजिटल पैड से पढ़कर स्टोरी नहीं सुनानी है, बुक उठाओ। मैं आज भी पेपर पेन वाली हूँ,
आज भी मैं बिलीव करती हूँ, मेरे आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स, आई रीड बुक्स, कि वो बुक पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। Yes, because the creative mind starts visualizing and then it turns आप जब into a like picture. पढ़ते हो तो कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते हो। Right. आप हम चाहे आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम खाली सुन लेते हैं या हम वो कर लेते हैं या हम डिजिटल पढ़ते हैं, स्क्रीन में क्यों? आप अपनी एनर्जी दे रहे हो खाली एक टेक्नोलॉजी पे। आप बुक पढ़ो, उठाओगे, और आप ना फिर जब पढ़ते हो ना, जैसे मैं स्टोरी के लिए बोलती हूँ, आई यूज्ड टू से कि 5th month onward the father should narrate a story with the baby because to make a bond between baby and the father also. तो I said talk like that. पता है एक बार एक राजा था, आपको पता है मेरे साथ भी बचपन में ऐसा हुआ, फिर दादू ने मुझे ऐसे समझाया। तो क्या होगा, बच्चा घर की भी रिश्तों को मॉरल समझेगा। बच्चे को आप अपनी ही बहादुरी की स्टोरी सुनाओगे और बच्चे को मोटिवेट करोगे। Right. वो वॉइस मॉड्यूलेशन आना, जो पहले होते ना थिएटर्स होते थे, Right. वो इमोशंस आना, क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना वो इमोशंस आते हैं। जब आप स्केच करते हो, कोई चीज लिखते हो अफर्मेशंस रोज, तो वो आलस कैसे होगा? हमारे टाइम में भी वही मम्मियाँ, मुझे याद है आज भी बोलती थी, लिख लिख के याद करो, रट जाएगा, छप जाएगा। तो वही तो प्रोग्रामिंग करनी है हमें ब्रेन में ड्यूरिंग द गर्भ संस्कार। Right. राइट, 6-7 month इज अ डेवलपिंग ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट। उस टाइम पे यू डू सम सुडोको, ब्रेन जिम एक्टिविटीज। उसमें मेरा पॉइंट ये होता है, मैं बोलती हूँ पूरी फैमिली को लेकर बिठाओ, प्ले चेस, प्ले लूडो, दादा दादी को, नाना नानी को, सबको बिठाओ, सो दैट बेबी विल हैव अ हैप्पी पेरेंटिंग। Yeah. And we'll also start recognizing the relationships Yes, around. रिलेशनशिप भी। एंड सबसे बड़ी बात, जैसे हम फील करते हैं ना कि आज जितने कितने भी बड़े हो जाए, मम्मी पापा के बीच में लेटते हैं तो वो सिक्योरिटी अलग Exactly. फील होती है, वो बिल्कुल। फीलिंग ही अलग होती है। राइट Absolutely. राइट, तो वही तो करनी है, दैट इज हैप्पी पेरेंटिंग। बच्चे को वो पॉजिटिव वाइब्स आएंगी गर्भ संस्कार में। देन देयर इज अ टेक्निक्स इन गर्भ संस्कार इन द 3rd trimester व्हेन वी प्रैक्टिस द हिप्नोबर्थिंग, एंजाइटीज को निकालने के लिए, कि आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, आई कैन विजुलाइज कि आई एम गोइंग हैप्पीली इन द हॉस्पिटल, आई एम नॉट स्ट्रेस बिकॉज आई कैन सी माई बेबी इन टू द आर्म्स, बिकॉज जिसको मैंने फील किया वो दिन आ गया है। आई कैन फील माई फैमिली इन टू द जॉय ऑफ टीयर्स। तो उससे क्या होता है, मेरी एक पेशेंट ने मुझे उसका फीडबैक दिया, क्योंकि बहुत ही रियल टाइम एक्सपीरियंस फीडबैक आई बिलीव। Right. उसने मुझे बोला कि मैम जब आपने विजुअलाइजेशन कराने के बाद जब मैं हॉस्पिटल गई तो मुझे लगा ये तो मैंने ऑलरेडी करवा रही थी आप, तो मुझे वो डर कम लगा, मैं कंपोज रही। मैं जब लेबर क्लास लेती हूँ तो मैं हमेशा सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ कि देखो ऐसा है, हम सब में बहुत बड़ी शक्ति है अगर हम क्रिएट कर रहे हैं। तो जब लेबर में होते हो ना तो वी डोंट नीड एनीबडी, बस एक जिंदगी में याद रखना वो शक्ति यूज कर देना। मैं उनको ये बात बोलती हूँ। मैंने कहा बस इसकी गारंटी में स्टैम्प पेपर में लिखती हूँ, मरोगे नहीं। फील होगा ऐसा लगा कि गए, ठीक है। मैं कहा मरोगे नहीं, इसकी गारंटी तो मैं स्टैम्प पेपर में अभी लिख कर दे देती हूँ बिना आपके गायनोकोलॉजिस्ट के कंसर्न के। मगर शक्ति लगा देना यार, बिल्कुल। और वो एक ना मिथ है या ये कह लो हमारे प्रैक्टिस है, हमारे यहाँ बोला जाता था कि मम्मास को लेकर नहीं जाना है अंदर, माँ नहीं जाती है। वो Right. कुछ नहीं है। वो क्या है, आप इमोशनली वीक हो जाते हो अपनी मदर को देख के, उससे कुछ Yeah. कोई उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन या उसके पीछे कोई प्रैक्टिस नहीं है। Right. वो सिर्फ इतना है कि एक लड़की जब अपनी मदर को देखती है वो इमोशनली वीक हो जाती है, तो शी Yeah. कैन नॉट एबल टू यूज हर इनर Strength. स्ट्रेंथ, और वही हस्बैंड को देखकर हो जाता है। हमने इतना हॉस्पिटल में देखा है, लेबर रूम में कई लोग तो मॉनिटर तोड़ देते हैं गुस्से में आके, जैसे होता है ना कि क्या? पैनिक हो गए, कंपोज। तो आई ऑलवेज से कंपोज रहना है वहाँ, Yeah. क्योंकि आपकी गायनेक भी कुछ नहीं करेगी, आपको उसकी हेल्प करनी है टू डिलीवर द बेबी। Right. Yes. ये वो भक्ति है जिसके लिए जो शक्ति चाहिए। ये Right. जो आपने टेक्निक में बोला, एक और बहुत बड़ा मिथ है सबके दिमाग में कि हमें तो कोई मतलब कॉर्ड आ गई या कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया तो मेरा तो सिजेरियन ही होना है, तो मुझे क्या जरूरत है इसकी, मुझे प्रीनेटल योगा की भी क्या जरूरत है। आई से नो, खाली एक नेचुरल बर्थ आपकी हेल्प थोड़ी ना करता है। आपकी जो प्रेगनेंसी की जर्नी में आपके पेन्स आते हैं, फिजिकल पेन, आप दवाइयाँ नहीं खा सकते, मेडिसिन यू कैन नॉट टेक एवरी टाइम। आपकी इजी करता है, आपकी बॉडी की, आपकी मसल्स की, आपकी लिगामेंट्स की जो लेग्स हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, आपकी बेबी को एक स्पेस क्रिएट कराने के लिए आसन्स कराए जाते हैं,
उनको क्रिएट करने के लिए आपकी मसल्स को प्रिपेयर करता है, आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है, आपको मेंटली प्रिपेयर करता है। एंड इन सब का फायदा चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, वो पोस्ट डिलीवरी रिकवरी में वी हैव सीन टू हाउ आवर मदर गेट बैक। Right. It's a journey of mother making mother. It's not a journey of making babies in personality. I always say, I am making parents. You will be going to make your child. Another beautiful lesson which you're teaching them, that they have to prepare themselves to be parents. Yes. बच्चा तो हो ही रहा है, आ ही रहा है. If they do that, बच्चा automatically train होके आ ही Train होके जाएगा. Amazing. बिल्कुल. That's a beautiful way of, you're putting these things in such a simple, beautiful way कि समझने वाले के लिए connect बहुत आसानी से मिल रहा है इन चीज़ों का कि okay, this is what I need to do. This is amazing. तो एक बात बताइए, there is something called diastasis. Diastasis recti. Right. Yes. What is that? And this happens after pregnancy, Yes, right? this is after And how is it treated? See, diastasis recti जो हमने अभी बात करी कि ये हमें पोस्ट डिलीवरी रिकवरी में हेल्प करता है, ये डायस्टेसिस रेक्टाई का यहाँ रोल आता है एक्सरसाइजेस। Okay. होता क्या है, ये एक बहुत सिंपल एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। जब आप 9 मंथ आप रखते हो बेबी को, तो आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, हमारी एब्डोमिनल मसल्स और हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स हमारी बैक साइड और उनकी मिलकर बनती हैं हमारी, Right. ठीक है। वो हमारी बिकॉज ऑफ आर प्रेगनेंसी हार्मोन वो सब ढीली पड़ जाती है, वो हम लेक्सिसिटी बोलते हैं। Okay. और जैसे हमारी ये जो स्किन है, इट इज इलास्टिक, भाई आप जब भी तो खिंच रहा है, स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, दैट इज अ। तो अब क्या होता है, जब अब आपने कोई टी शर्ट खींची, अब उसको वापस आने में के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, वो तो ढीली हो गई। अब बार बार आपने एक एक्सटेंड तक इलास्टिक को किसी कपड़े को खींचा आपने, अब वो जब ढीली पड़ जाती है और आप कोई एक्सरसाइजेस नहीं करते हो, कोर स्ट्रेंथनिंग नहीं करते हो, जो कोर मसल्स हैं जिसपे हमारा बेबी का पूरा, जिनकी आपने देखा होगा जो एथलीट्स मदर होती हैं, अभी जैसे अभी बहुत रिसेंटली आपने अभी हमारे 2024 के ओलंपिक्स में पेरिस में जो नादा हफीज थी, जो इजिप्टियन फेंसर है, उन्होंने 7 मंथ में शी प्लेड, एंड जो उनका कैप्शन था, दैट वाज सो इमोशनल, दैट आई वन द बैटल, वन मोर बैटल विद माय बेबी, मी एंड माय बेबी प्लेड टुगेदर। Wow. तो वो क्या था, जो एथलीट बॉडी होती है एक मदर की, उनकी कोर स्ट्रांग होती है, ठीक है। दैट व्हाट आपने देखा होगा, जो सेलिब्रिटीज का हमारा आता है कि वो हेड स्टैंड हो रहा है, ये हो रहा है, वो क्या है, बिकॉज दे हैव द फिजिक सो स्ट्रांग, द कोर इज सो स्ट्रांग, दे कैन एबल टू होल्ड इट प्रॉपरली, एंड दैट इसलिए कोई वो दिक्कत नहीं आती। तो वो हमारी प्रीनेटल से हम जब कोर एक्सरसाइजेस कुछ कुछ कराते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर, Right. that helps in regaining and healing our abdominal muscle और core muscle the strength post delivery। अगर जब वो नहीं होता, जैसे मैंने टी शर्ट का एग्जांपल दिया कि वो Right. ढीली रह जाती है, वो होता है डायस्टेसिस रेक्टाई, Got it. ठीक है। जो हमारे अम्नाइकल के नीचे एक लाइन होती है, वो खुल जाती है, एब्डोमिनल रेक्टाई हमारी जो हमारी मसल है, वो हमारी ऐसे सेपरेट रह जाती है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के दौरान में स्ट्रेच होती ही होती है, बिल्कुल। वो वापस नहीं आएगी। तो उसकी टेस्ट होता है, जैसे 2 फिंगर 3 फिंगर, आपको लगेगा 5th मंथ के बाद भी, पोस्ट डिलीवरी 5th मंथ के बाद भी आपको लगेगा बेली फैट है, अलग से बेबी पाउच लटका हुआ है। एक तो होता है कि नॉर्मल फैट होता है, Right. और एक होता है आपको पता लगता है कि यार ये अलग ही लटक रहा है ये चीज, ये, और वो आप टेस्ट करते हो कि अगर आप लेटे हुए और आप उठते हो तो आपका 2 फिंगर अंदर जा रहा है, 3 फिंगर अंदर जा रहा है, यू कैन फील द सेपरेशन बिटवीन द 2 मसल्स, यू कैन फील दैट सेपरेशन, Right. दैट इज दी डायस्टेसिस रेक्टाई। Okay. इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीनेटल एक्सरसाइजेज, योगा। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि एक मदर को वेट लूज पे फोकस ना करते हुए ग्रेजुअली शी हैज टू फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हर पोस्ट डिलीवरी फिटनेस इज अ कोर स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर उसको आपने हील नहीं करा और कोर स्ट्रेंथनिंग को आपने नहीं काम किया, इट कैन लीड टू दी हर्निया ऑल्सो। Okay. जो बहुत कॉमनली ये भी देखा जाता है, पोस्ट डिलीवरी हर्निया ऑल्सो, Right. ठीक है, क्योंकि वेट पुट ऑन हुए जा रहा है, वेट पुट ऑन हुए जा रहा है, और वेट आ रहा है, आपने काम ही नहीं करा। तो इसलिए हम बोलते हैं अगर नॉर्मल डिलीवरी है आफ्टर 2 months, Okay. सिजेरियन है आफ्टर 3 months, स्टार्ट विद सम कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, वो भी अंडर एनी एक्सपर्ट।
Right. जो फोकस करे सिर्फ कोर पे. I don't entertain gymming into that. I'm not against anything. बट हम फोकस करती है मदर सिर्फ वेट लॉस हो जाए. हम बिल्कुल वेट लॉस से इम्पोर्टेंट है आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ रिगेन करना. जो लूज हो गई है उसको धीरे धीरे रिकवर करो. पहले रिकवरी की बात करेंगे, उसके बाद आप अपनी अदर एस्पेक्ट्स पे आओ. Actually, honestly, when you work on your health and your strength, हाँ. side effects are loss of weight, Yes. beautiful body, Yes. and beautiful looking face because that glow comes That on glow you. comes on. So basically, अगर आप अपने फोकस को हेल्थ और स्ट्रेंथ पे रखें ना, हाँ. तो आपको साइड इफेक्ट में ये ऑटोमेटिकली मिल जाती है दोनों तो चीजें. कोर स्ट्रेंथनिंग जी. इम्पोर्टेंट है. उसके साथ क्योंकि एक मदर्स के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो वो आपको मेंटल हील देता है योगा. पोस्ट डिलीवरी आपको मेंटली भी आपको हील करता है. तो आई ऑलवेज से चाहे 15 मिनट्स का टाइम निकालो, चाहे 30 मिनट्स का टाइम निकालो, प्लीज मगर 3 मंथ्स के बाद वॉकिंग स्टार्ट करो, कॉन्शियस ईटिंग करो. इट इज नॉट कैलोरी डेफिशिएंट, इट शुड बी अ माइंडफुल ईटिंग. राइट. ठीक है. ऑप्शंस अगर आपको एकदम से मदरहुड है, भूख लगती है, तो सामने बिस्किट का पैकेट भी दिखेगा और सामने पनीर भी निकला हुआ दिखेगा, या पनीर भी दिखेगा, या कोई वेजिटेबल गाजर मिल जाएगी आपको सामने, सेम फ्रूट है. तो इट्स योर चॉइस. आई ऑलवेज से राइट फूड एट राइट टाइम एंड राइट क्वांटिटी. Right. That's give you a physically fit and positive body. So beautiful. One more formula. Right choice, Right food, right time. right food, right at right time, at right portion. Lovely. Amazing. That's a beautiful formula for nutrition. And I think pregnancy में तो definitely बहुत important है. But अगर ये 3 चीजें हर इंसान follow करना शुरू कर दे, you will have absolute healthy bodies. Yes, because Literally. post delivery do have mother have lots of guilt. अगर working mother है, Right. stress है, उसके बाद न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाने का टाइम सेट नहीं है. जनरली मैं आपको बताऊं, डिलीवरी के बाद बेबी फैट नहीं होता. 5 से 6 किलो तो डिलीवरी के तुरंत बाद ही निकल जाता है. Right. उसके बाद जो फैट बढ़ता है वो आपकी अपनी खुद की चॉइसेस की वजह से बढ़ता है. कभी भी आपका ये नहीं होगा ये मेरा प्रेगनेंसी फैट है. Okay. प्रेगनेंसी फैट नहीं बढ़ेगा. प्रेगनेंसी फैट तो 5 किलो तो वैसे ही निकल जाता है अगर आप चाहो. मगर आप कॉन्शियस ईटिंग नहीं करते, आप लेट नाइट खा रहे हो. एंड thanks to some every time availability of fooding application. Right. So कि रात को जैसे बहुत मुझे अच्छा लगा एक चीज, अभी आई शुड से नेम फॉर दिस बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगी वो चीज. अभी जोमेटो पे किसी ने बोला कि बिकॉज जोमेटो के आने की वजह से हमारी हेल्दी हैबिट्स नहीं रह गई, हम रात को खाते हैं. और जोमेटो के ओनर ने, सीईओ ने एक वर्ड बोला, बहुत अच्छा बोला कि देखो मैं तो बेच रहा हूँ, मेरे में हेल्दी ऑप्शंस भी है और अनहेल्दी. अभी तो चॉइस आपकी है ना कि आप क्या चूज करो, मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ. तो ये वही वाली बात आ गई कि आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चे को कैसे संस्कार में बीज संस्कार करोगे या नहीं करोगे. हाउ यू विल बी क्रिएटिंग योर चाइल्ड, दैट इज योर चॉइस. तो ये जिंदगी में हमें हर चीज में चॉइसेस मिलती हैं. Yes. जो हमारे ऊपर होता है हमें क्या चूज करना है. बिल्कुल. Absolutely. राइट. और वहां से एक मदर की हेल्थ की बुनियाद शुरू होती है जो एंड होती है मीनोपॉज तक आपके लिए. Right. और ये बहुत सारे मिथ हैं. अरे वो बच्चा पैदा होने के बाद, सिजेरियन होने के बाद कमर में दर्द बैठ गया. ये एक मैं बहुत कॉमनली सुनती हूँ कि स्पाइन पे इंजेक्शन लगा था, वो स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से कमर में दर्द बैठती है. उससे कभी कमर में दर्द नहीं बैठता है. दैट्स अ बिग मिथ. I was coming to this question. What are the myths related to pregnancy and pregnancy care? वो तो अगर आप बात करोगे तो वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट अबाउट द मिथ. हमारे यहाँ इतने मिथ हैं. सबसे पहला मिथ ही ये पोस्ट डिलीवरी की मैं बात करूँ कि मेरे सिजेरियन हुआ, मुझे दर्द बैठ. बिकॉज मेनी फैक्टर्स आते हैं. आपका ब्रेस्ट फीड कराते हुए आप रॉन्ग पोस्चर्स में बैठे हुए हो, आपने ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी आपने इतना ओवरवेट कर लिया कि आपने एक्सरसाइजेज ही नहीं करी है. पोस्ट डिलीवरी आपने अपनी कोर स्ट्रेंथनिंग नहीं करी है. 8 साल के बाद कैसे सिजेरियन का दर्द आ सकता है. फिर मैं जब पेशेंट से पूछती हूँ, मैंने कहा आपने कुछ करा? नहीं मैम, टाइम ही का मिला अब 8 साल बाद. तो फिर कैसे, आप बताओ ना. ये तो नॉर्मल इंसानों की भी कोर वीक हो जाएगी. राइट. तो हमने कभी बेसिक अवेयरनेस पे काम ही नहीं करा. हमारी बेसिक मेडिकल प्रैक्टिस में अवेयरनेस क्रिएट नहीं करी जा रही है. बेसिक मेडिकल प्रैक्टिस में वी जस्ट राइट नेम राइट. और मैं बोलती हूँ अब 70% ही वाली बात. इट्स 70% आधी बीमारियां लाइफस्टाइल की है.
लैक ऑफ नॉर्मल स्लीप नहीं होना, अप्रोप्रिएट टाइम पे खाना नहीं खाना, हर चीज में मतलब होता है ना इजिली अवेलेबिलिटी है, आप डाइट पे तो आप चले जाओगे एंड मतलब कुछ चीजें प्रैक्टिस विच आर बियॉन्ड माई एक्सेप्टेंस इज लाइक कि क्यों शॉर्टकट चाहिए लाइफ में। खाना खाने के लिए जीवन बनाया है भगवान ने, जिस रीजन में रहते हो उसका स्टेपल फूड खाओ, क्यों आपको सप्लीमेंट्स पे रहना है। Life is so beautiful and we are blessed to be have a beautiful anaj, beautiful vegetables, fruits, respect the nature is giving you. So why have to replace those anaj or sab kuch into the tablets or the shakes or something like that? Again we are going against nature. क्योंकि शॉर्ट चाहिए ना, मेहनत कोई करना नहीं चाहता, और उसके आगे के प्रोपरंस कॉन्स क्या होंगे। असली जीवन यही है, जल्दी उठो, अपना एक्सरसाइज करो 15 मिनट, अपना अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा टाइम दो, खुद के लिए 10 मिनट खुद से बात करो, खुद से कनेक्ट करो, ना कि बाहरी दुनिया से जवाब मांगो। सारे जवाब हमारे अंदर ही, ठीक है। उसके बाद अपना काम करो, टाइम से सो, भगवान ने ऐसे ही साइकिल बनाई है, ऐसे ही नेचर है ये। आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो नेचर तो कम बैक देगा ही ना आपको। बिल्कुल। आप नॉर्मल उसमें आ जाइए तो वैसे ठीक हो जाओगे, आपको किसी की भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही बात है। तो ये है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टाई को भी रोकना। चाहे आप बात करो पोस्ट डिलीवरी हीलिंग की, मिथ की बात करो, आप मिथ तो ट्रमेंडस भरे पड़े हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे नीचे नहीं बैठना, प्रेगनेंसी योगा नहीं करना, 7 मंथ में डिलीवरी पहले हो जाएगी। मैं बोलती हूँ 6-7 मंथ से नीचे आलती पालती बैठ के खाना खाना है। बॉडी प्रिपेयर कैसे होगी, बच्चे का सिर फ्लैट हो जाएगा नीचे बैठोगे प्रेगनेंसी में। बच्चा इतनी सारी लेयर्स के अंदर है, वो इतना पानी के अंदर है कि वो तो फील ही नहीं होगा नीचे से, ही इज ए बॉन्सी। दूसरा जो मैं सबको अवेयर करना चाहती हूँ, पोस्ट डिलीवरी के बाद वो घुट्टियां पिलाना, काजल लगाना, इट इज नॉट समथिंग, बिकॉज पहले प्योरिटी आती थी, अभी प्योरिटी नहीं है। तो अंडरस्टैंड दिस साइंस। दूसरा, बच्चे को गोदी की आदत पड़ जाएगी, इसको जैसे लिटाओ देखो रो रहा है, उसके पीछे एक साइंस है जो मैं सच्ची में बताना चाहूंगी। बच्चा 9 महीने एक पानी के अंदर है और बच्चा अपनी माँ की वार्मनेस वो फील करता है, माँ की आवाजें फील करता है, ठीक है, और भी आवाजें फील करता है। आज 2 महीने तक आई ऑलवेज से टू माई पेशेंट्स, कीप योर बेबी ऑन योर चेस्ट बिकॉज योर बेबी फील सिक्योर। एकदम से बच्चा बाहर आता है, हमारे सब रिश्तेदार साइड में हो जाएंगे, उसको उस पर पालने पर टाके, अरे नहीं इसे गोदी क्या कैसे पड़ेगी उस बच्चे को सिक्योरिटी। अगर आज 9 महीने हम सब एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग को मैं बोलती हूँ, हम 9 महीने एक अंधेरे कमरे में हमें बंद कर दिया जाए, तो क्या हम 9 महीने बाद जब बाहर निकलेंगे हमें आदत हो कि हम एकदम से हमें डर लगेगा, हम एकदम से इंटरेक्ट नहीं हो। सेम बच्चा है, गिव एवरीथिंग नेचुरली, गो विद द फ्लो। मदर्स को भी मैं यही बोलूंगी, कोई स्ट्रेस मत लो, वेट लॉस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, काम करो। यस, मुझे कुछ अपनी बॉडी को अंदर एब्डोमिनल हीलिंग के लिए काम करना है, कॉन्शियस ईटिंग करनी है, क्लीन ईटिंग करनी है। आई एम blessed to have this stretch marks. It's okay, they are the beautiful marks of my baby journey. अगर आप अपनी बॉडी को एक्सेप्ट कर लोगे, खुद को एक्सेप्ट कर लोगे और उस पर अपने हिसाब से हेल्दी वे में काम करोगे, तो ना तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आएगी। डोंट गो बिहाइंड द सोसाइटी, इट्स योर बॉडी विच हैज टू बी ईदर सफर और ईदर ही हैज टू बी चेरिश द हेल्दी। Yes, we have to make that choice. Right. Thank you so much, Neha ji. आज आपने इतने beautiful lessons सिखाए हैं. What is your final word of advice for the audience? I just always say it's a beautiful journey. We are blessed to be a woman. I'm proud to be a woman who can create, who can save, we can be savior, can be like nurturer and everything together. और बस हमेशा याद रखिए, अपनी किसी भी परिस्थितियों को अपना विक्टिम ना बनाकर, अपनी परिस्थितियों से को इफेक्ट कीजिए और उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाकर चलते जाना है, तभी वी आर शक्तिज। Beautiful. So one of the best advice ever received on this podcast. Thank you so much, Neha ji, for your valuable time, your valuable wisdom, priceless wisdom.
आज आपने इतनी इतनी प्राइसलेस बातें सिखाई हैं सब लोगों को. एंड आई होप ऑल यू प्रेग्नेंट पीपल आउट देयर, पार्टनर्स, सपोर्टिंग फैमिलीज, आई होप आप लोगों ने ये बातें सुनी हैं. प्लीज हैव फेथ. एक बार चल के तो देखिए इस रास्ते पे. लाइक शी सेड, वी आर को क्रिएटर्स. अगर हम को क्रिएटर्स हैं ऊपर वाले की तरफ से, हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, इस बात को सोचिए, उस पे अपने डिसीजंस को बेस करिए और आगे बढ़िए इस रास्ते पे गर्भ संस्कार के, बीज संस्कार के. और फिर देखिए आपके हाथ में है इस दुनिया को इतना ब्यूटीफुल बनाना. जो जर्नी आपके अपने घर से शुरू होगी बाय क्रिएटिंग दोस ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स. Tomorrow is beautiful. Be part of it. Thank you so much for being here with us. Take care and God bless till we meet again.